آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں کراچی میں صوبائی وزراء کی نیوز کانفرنس جاری ہے. میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ایف پی سی سی آئی کے بیہاف پر، بزنس کمیونٹی کے بیہاف پر، کہ انہوں نے 15 دن پہلے اپنی ٹیم جس میں مریم اورنگزیب صاحبہ سے سینئر جو منسٹر ہیں وہ اور چیف سیکرٹری زاہد زمان صاحب ایف پی سی سی آئی کے ریجنل آفس میں تشریف لائے اور انہوں نے ہمارے جو ایشوز ہیں اس کو ایڈریس کیا، اور اس کی پھر کنٹینیوٹی میں دوبارہ وہ ہمارے پاس آئے، تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اور سی ایم صاحبہ کا بھی. تھینک یو. اچھا، کوشچن میرا یہ ہے کہ جی ایس ٹی پلس جو بیسیکلی ایک لیوریج ہے جو ہم لوگوں کو ملی ہوئی ہے، تو اس لیوریج پہ ٹو مچ ڈپینڈنس کیا ویزیبل ہے؟ شارٹ ٹرم اسٹریٹجی نہیں، لانگ ٹرم اسٹریٹجی آپ کے خیال میں ہونی چاہیے کہ اور بھی. سیکنڈلی، انڈسٹری جو ہماری ہے اس کو ویلیویشن کی ضرورت ہے، ٹیکنالوجی بیس سولوشنز کی ضرورت ہے یا کہ نہیں ہے. تھرڈلی، لیٹس سے جی ایس ٹی پلس ڈسکنٹینیو ہو گیا فرام ناؤ آنورڈز، گاڈ فوربڈ، اللہ نہ کرے ایسا ہو، اگر ہوتا ہے تو ہمارے پاس سے زیادہ گندم فوڈ ڈپارٹمنٹ کے پاس پڑی ہوئی ہے اور ثابت ہوا کہ وہ ٹھیک ہے. آج بھی ان کے پاس ریلیز کے لیے آرڈرز پڑے ہوئے ہیں جو آ کے سندھ گورنمنٹ نے کہا ہے بند کریں کہ یہ نیریٹو بنانا یہ کسان کے خلاف نیریٹو ہے. بات کو ماننا پڑے گا کہ پاکستان کی اکانومی کسان کے اوپر ہوتی ہے، پاکستان کی اکانومی ایگریکلچر کے اوپر ہے. اور جب آپ نے نہیں خریدی تو آپ نے امپورٹ کی گندم. 2023 میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے گندم امپورٹ کی. ہم اپنے کسان کو 3500 روپے ریٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن ہم نے سینٹرل ایشیا یوکرین کے کسان کو 4500 کا ریٹ دے دیا گندم کا. اور وہ جب گندم پہنچی تو پتا چلا وہ کھانے جیسی بھی نہیں ہے. ہاں، اس میکینزم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، پروکیورمنٹ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے جو سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے. اور میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں 10 لاکھ گندم ریلیز ہو چکی ہے، 2 لاکھ سے زیادہ گندم ہمارے پاس ایک کوالٹی کی اویلیبل ہے. 80,000 70,000 گندم وہ ہے جس میں شک کیا جا رہا ہے کہ وہ ملاوٹ ہوئی ہے. ان کو بھی فکس کرنے کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے ایکشن لیا گیا ہے تو اس بات کو کریکٹ کر لیں. 90% سے زیادہ اس میکینزم کا فائدہ ہو. مکتوم صاحب یہ بتائیں کہ ابھی آپ کی جانب سے یہ اعلان ہوا کہ جن کو ہاری کارڈ ہے یا جن کو آپ نے یوریا دیا انہیں سے یہ گندم آپ خرید کریں گے. سندھ کے جو باقی آبادگار ہیں جنہوں نے گندم لگائی ہے وہ کس کے آسرے پہ گندم لگائیں؟ کیا وہ اس لائق نہیں ہے کہ آپ ان سے گندم خریدیں؟ یا تو پھر ایسا ہی ہو کہ جن کو آپ باردانہ دیں، جن کو آپ سبسڈی دے وہی گندم لگائے، باقی پورا سندھ جو ہے لوسن لگائے، کوئی گاس لگائے، کوئی جو ہے دوسرے پہ جائے؟ کیوں آپ صرف مخصوص کو کیوں کر رہے ہیں؟ آپ باقیوں سے بھی خریداری کریں نا، وہ بھی تو گندم لگا رہے ہیں. 100% کراپ جو ہے نا چاندہ صاحب کہیں بھی نہیں گورنمنٹ لیتی ہے، 25% لیتی ہے، 100% تو کوئی نہیں لے سکتا. جسٹ صاحب آپ کا سوال جو ہے، دیکھیں اگر ہاری کارڈ سے ہاری کو فائدہ ہوا، اس کو گندم لگانے کے لیے یوریا ملی، دوسری تیسری چیزیں ملی، آج اس نے پریکیور کیا ہے گورنمنٹ کے بیسس پر. وہی ہاری کارڈ پر اگر ان غریبوں کو جو 1 ایکڑ سے 25 ایکڑ کے بیچ میں ہے، وہ ایک بہت لوور طبقہ، اس کو اگر گورنمنٹ آپ خود بول رہے ہیں کہ اس وقت کہ آپ نے بولا کہ دادو سے سید آباد سے میں آ رہا ہوں ریٹ کم ہے، اگر اس کو اپنا حق مل رہا ہے، ایک نچلے طبقے کو اپنا حق مل رہا ہے، اور اس سے ایک اور فائدہ ہوگا اور لوگ بھی رجسٹر ہوں گے ہاری کا، اور ایک پرفیکٹ ڈیٹا ہوگا اور ایک ٹرانسپیرنسی آ رہی ہے. میرے خیال میں یہ جو فوڈ ڈپارٹمنٹ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے مل کر یہ جو میکینزم طے کیا ہے بہت ہی زبردست ہے، اور اس کا رزلٹ انشاءاللہ بہت اچھا آئے گا. ٹرانسپیرنس ہوگی، لوگوں کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ پیسے جائیں گے، باردانے والی کمپلین بھی نہیں ہوگی، باردانہ بھی ان کا اپنا ہوگا، اس باردانے کے بھی گورنمنٹ پیسے دے گی. تو یہ ایک انسینٹو دے رہی ہے کہ اور لوگوں کو کہ آپ آئیں ہاری کارڈ کو جوائن کریں. اور اس سے ایک ڈیٹا کلیکٹ ہو رہا ہے 2022 کے بعد جو فلڈز میں تباہی ہوئی، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹ نے 20 لاکھ لوگوں کو اپنے گھر بھی بنا کر دے رہی. تو یہ ڈیجیٹائلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں اور ایک یہ میکینزم بن رہا ہے.
तो हम सबको ये उम्मीद रखनी चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि ये कामयाब हो। एक मिनट जो मैं चांडो साहब का एक मुख्तसर, जो गवर्नमेंट ने फिक्स की है एग्जिस्टिंग पॉलिसी, वो 1 to 25 के जो फार्मर्स हैं उनसे पर एकड़ 5 kg की प्रोक्योरमेंट है इस वक्त, और सिंध कैबिनेट अपने फैसले टाइम टू टाइम रिव्यू करती रहती है, और उसके लिए हमारे सब कमेटी आज यहाँ पे मौजूद है। अगर गवर्नमेंट को ये महसूस हुआ कि हम अपने स्कोप को एक्सपेंड करें, 1 से 25 एकड़ के फार्मर्स को हम एक्सपेंड करके मीडियम स्केल के फार्मर्स पे आएँ या लार्ज स्केल पे आएँ, तो वी विल रिव्यू इट फेज़ वाइज, हम इंशाल्लाह इसको उस तरीके से करेंगे। और जैसे अभी मुकेश साहब ने फरमाया कि ये हम चाहते हैं कि जो सबसे जो डाउन ट्रॉडन हमारा फार्मर्स का जो तबका है हम उसको फ़ायदा दें, क्योंकि हमारे सिंध की असल ताकत वो फार्मर्स ही हैं, जिनकी यूजुअली जो राइट्स होते हैं वो उन पे डाका डाला जाता है। जी मैं एक एडिशन कर दूं, चांडियो साहब के एक एडिशन कर दूं जमाली साहब। पाकिस्तान में टोटल जो हमारी फार्मिंग कम्युनिटी है उसमें 80% फार्मर वो हैं जिनकी 25 एकड़ से ज़मीन। पहला डेटा ये। दूसरा डेटा ये, सिंध में 35 लाख एकड़ के ऊपर काश्तकारी की गई है गंदम की, उसमें 20 लाख एकड़ वो लोग हैं जिनकी 25 एकड़ से कम है। तो आप अंदाज़ा करें कि आप 60% लोगों को डायरेक्टली 35 लाख एकड़ 20 लाख एकड़ के पास हारी कार्ड बनाओ, जिनका डेटा डिस्ट्रिक्ट वाइज रिलीज किया गया है, जिनको फर्टिलाइजर की सब, तो 20 लाख लोगों एकड़ वालों से आप गंदम खरीद कर रहे हैं। जमाली साहब जी एक जो है कि आप 2 साल पहले आपने खुद ही फरमाया और है भी सही कि आप किसान को या फार्मर को 4000 रुपये रेट दे चुके हैं, सिंध हुकूमत खुद खरीद कर चुकी है, यानी आप तो पीछे चले गए। यानी ये नुकसान जो हो रहा है, ये भी तो नुकसान उसी किसान का ही हो रहा है ना, जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं। 4000 से आप 3500 पे चले गए हैं, तो उस फार्मर ये तो मतलब जबकि दुनिया भर में रेट चढ़ा है, पेट्रोलियम के रेट चढ़े हैं, किराए ज्यादा। आपने उसके बाद हमारे पाकिस्तान के हालात को कंसिडर किया है कि उसके बाद पाकिस्तान ने क्या क्या नेचुरल कैलेमिटीज़ के साथ डील किया है। हमारे पास टोरेंशियल रेन के जो फ्लैश हमारी फ्लड्स आ गई उसके बीच में, और इस वक्त भी 3200 3150 दिस इज़ द रेट। हम उससे सिर्फ ये 300-350 रुपये ऊपर नहीं, पर बल्कि बारदाने पे इंसेंटिव दे रहे हैं जो पहले कभी भी नहीं दिया गया। हम 50 रुपीज़ 50 kg के बैग पे दे रहे हैं और 100 रुपीज़ 100 kg के बैग पे, जो उसमें अगर हम ऐड करें तो लगभग 400 रुपये बनता है। और उसके अलावा में 3500 हर सूबे में 3500। और हमारे साहब इसमें ऐड ये कर, इसमें ना एक ऐड कर दें। आपको बात करने के एक पॉइंट देखिए, जिन फार्मर से हम 3500 में ले रहे हैं, उन्हीं फार्मर को डीएपी की बोरी का डायरेक्टली फायदा हुआ है जो सिंध गवर्नमेंट ने दिया है। डीएपी का रेट लेके और 2 यूरिया की, ठीक है। अगर किनको मिले किनको नहीं मिले होंगे, मैं ये नहीं कहता नहीं मिले। डीएपी के तो मिले हैं ना, 15,000 रुपया का डीएपी चल रहा था मार्केट के अंदर, उसका और काउंट करें एकड़ के ऊपर 15,000 और 3500 रुपये, तो आप काउंट करें तो फायदा उसको हुआ है। ये पाकिस्तान। मैडम अरबों रुपए की गंदम जो है हर साल खराब होती है। पिछले साल भी 10 अरब रुपए की गंदम खराब हुई। इसके लिए आप लोगों की क्या स्ट्रेटेजी है कि हर साल अरबों रुपए की गंदम खराबी हो रही है? देखिए, स्ट्रैटेजी हमारे पास जो कवर्ड एरिया है वो 7-7.5 लाख का है, बाकी हमारे ओपन एरियाज़ हैं। उसके बाद हमारे वीट को होल्ड करने की एक अपनी कॉस्टिंग होती है, बैंक्स के मार्कअप्स होते हैं और हम रेंट्स अलग पे करते हैं। इसके अलावा हमारी बारिशें होती हैं और दीगर क्लाइमेट चेंज के हालात होते हैं। इस पे हमारी एक्सटेंसिव मुशावरत चल रही है विद सखर IBA और एक और कंसोर्टियम है विच वी विल डिस्क्लोज। जैसे ये हम एक रेवोल्यूशनरी स्टेप ले आए हैं प्रोक्योरमेंट का, ऐसे वीट को प्रिजर्व करने का, मेंटेन रखने का और करप्शन के एलिमिनेट को बिल्कुल जड़ से उखाड़ने का, ये भी इंशाल्लाह ताला हम गुड न्यूज़ देंगे। सादा सवाल ये है कि 18 अरब की गंदम खराब हो गई,
17 अरब की गंदम चोरी हो गई, 35 अरब ये हो गए, 84 अरब रुपए की आपने सब्सिडी दी, 119 अरब रुपए। सिंध का बजट सालाना 119 अरब रुपए गंदम के नाम पर क्यों खर्च किए जाते हैं? आवाम को क्या फायदा है? ये सच है नहीं है? 18 अरब की गंदम खराब हुई है नहीं हुई है? 17 अरब की गंदम चोरी हुई है नहीं हुई है? ये देखिए संजय, ये फिगर्स आपके हैं कि देखें उसके रेफरेंसेस मूव हुए हैं। अभी मैंने इनिशियल जो मेरी ओपनिंग थी उसमें मैंने बोला कि डिसिप्लिनरी एक्शन टेंस ऑफ ऑफिसर्स पे उठाया गया। ये जो अडल्ट्रेट हुई है, चोरी हुई है, डैमेज हुई है, ये हम इंशाल्लाह रखते हैं कि उनसे रिकवर करेंगे और गवर्नमेंट के एक्सचेकर में वापस ले आएंगे। हम फोकस करते हैं कि जो सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, आप उसको भूल जाते हैं। सब्सिडी हम इस वक्त कितनी दे रहे हैं, प्रोक्योरमेंट में हम रिलीज में हमने कितनी दी है। संजय, आपको उस पर फोकस होना चाहिए कि हमने 84 बिलियन इज नॉट अ नॉर्मल 84 अरब रुपए की सब्सिडी है जो गवर्नमेंट दे रही है। आपके फिगर सही नहीं है। फायदा गवर्नमेंट को संजय, मैं आपको करेक्ट कर दूं। देखिए, मैं पहले फिगर मैंने दिए, सुने, मैंने आपको फिगर दिए। देखिए, हमारे पास 13 लाख टन गंदम अवेलेबल थी गोदामों के अंदर। कितने की खरीदी थी? मैं ये भी कर तो सब्र तो कर ना मैं रेस्क्यू नहीं कर रहा, मैं आपको डिटेल दे रहा हूँ। 10 लाख गवर्नमेंट रिलीज कर चुकी है। 2 लाख से ज़्यादा गंदम हमारे पास एक क्वालिटी की पड़ी है। 80,000 टन ऐसी गंदम है जिसके अंदर फूड डिपार्टमेंट सस्पिशियस है कि सर इसमें कोई 20-25% गंदम में मिक्सिंग हुई है, जिसके लिए एक कमेटी हमने फॉर्म की है जो जाके एक्शन करेगी। ये जो आपकी फिगर है 35 अरब 30 अरब की गंदम खराब हो गई, इसका 10% भी नहीं बनेगी ये कीमत। सुने मैं वो कह रहा हूँ, जो 10% भी खराब हुई है उनको सजा देंगे, उनको सजा हम देंगे। तो मैं आपकी फिगर को मैं सस्पिशियस हूँ कि आपकी मैं कहता हूँ 10% भी आपका नहीं बनेगी अगर वो गंदम सुने दूसरी उस पे इंक्वायरी चल रही है। और देखिए, ये जो नैरेटिव है कि गंदम नहीं खरीदनी चाहिए, लोगों को फायदा नहीं होगा, ये एक आपका नैरेटिव है। मैं वो कहता हूँ कि ये आजमाया गया, पंजाब ने आजमाया। 2024 में गंदम उन्होंने नहीं खरीदी, फिर अब पास्को के पास गंदम पड़ी हुई थी, उन्होंने खरीदी है। इस सिस्टम के थ्रू आटे का रेट मेंटेन किया जाता है। अगर ये गंदम नहीं होती, आपकी गंदम निकल चुकी होती दूसरे मुल्कों में, या होर्डर्स के पास होती आपकी गंदम, और आपके पास आटा 300 रुपए में किलो बिकता। ये एक गवर्नमेंट के पास हथियार पड़ा होता है, जब भी कीमतें ऊपर खरीदारी और खुर्द के मामले पर कराची में सिंध के वज़रा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी थी। उन्होंने कहा कि हुकूमत सिंध ने 1 मिलियन मैट्रिक टन गंदम रिलीज की है। इसके अलावा 1 अप्रैल से सिंध में गंदम खरीदारी का आगाज हो जाएगा। सिंध हुकूमत ने अवाम को 84 अरब रुपए की सब्सिडी दी है। महकमा खुराक सिंध ने शफाफ खरीदारी को यकीनी बनाया है। मजीद कहना था कि बेज़ाब्तगियों पर 43 अफसरान को शोकॉज, 22 मुअत्तल और 9 को बरतरफ किया गया है। आपको अपडेट करते चलें कि कराची में सिंध के सूबाई वज़रा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी थी। उन्होंने कहा कि महकमा खुराक सिंध ने शफाफ खरीदारी को यकीनी बनाया है।